Very good morning to all. In the last class, what we have covered generally related MCQ questions. Okay, any doubts in the last class? Revision करके आए हो ना? What are the types of the governor? How to classify according to the load, according to the spring? ठीक है, एक बार और रिविजन कर लो. ठीक है, Hartnell governor in which type of the governor? That is spring loaded because in which having the spring. Okay, ठीक है. और जो आपका वार्ड गवर्नर है that is pendulum type governor. ठीक है. Or if in the ward governor added to the heavy mass, that is known as sleeve. Okay, if in the ward governor if loaded heavy mass, that's become a porter governor. ठीक है. And if in the porter governor added extension ball, okay, so that's become royal governor. ठीक है, इसमें आपका एक्सटेंशन के थ्रू आपका बाल जो है कनेक्टेड रहेगा. ठीक है, ये क्लियर है. ये फार्मूला याद रखना. व्हाट आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला 3 × L-1 - 2J - H. ओके, एंड नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस का फार्मूला भी बताया था. व्हाट आर द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इफ गिवन दैट नंबर ऑफ लिंक. ये फार्मूला याद रखना. इफ L इज द नंबर ऑफ लिंक इंस्टेंटेनियस सेंटर दैट इज C = N इज द नंबर ऑफ लिंक. यहाँ पे N-2 हो जाएगा ऐसा. ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालना है. इफ गिवन दैट नंबर ऑफ लिंक देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर टू पुट द वैल्यू ऑफ वैल्यू n is शायद n+1 n-1 इट में भी n+1 होता है ना. ठीक है, n+1 / 2 होता है ये. ठीक है, उसमें आप एड जैसे यहाँ पे इफ द नंबर ऑफ लिंक इज 11, ओके, देन नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस इज 11 + 1 / 2, दैट मीन्स 6 हो जाएगा. ठीक है, तो फिर आज आपका नया टॉपिक है दैट इज बीरिंग. दिस इज योर, ये आपका देखो सिलेबस में ये कंप्लीट हो चुका है टिल नाउ. रिवेट जॉइंट, केम, बीरिंग, बीरिंग और फ्रिक्शन इन कॉलर एंड पाइवट वाइब्रेशन. ठीक है, ये दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन. ठीक है, फिर इसका मैं टेस्ट सीरीज अपलोड कर दूंगा, फिर वहाँ पे जाके आप देख लेना. ठीक है, यू ट्राई टू टेक ए टेस्ट एवरीवन. इज इट क्लियर? सो व्हाट इज बीरिंग एनीवन? व्हाट इज बीरिंग? ठीक है, सो व्हाट इज बीरिंग? बीरिंग इज नथिंग बट इज ए मशीनरी इक्विपमेंट, एक तरह से बोल सकते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर रिमूव द फ्रिक्शन. ओके, दिस इज यूज्ड इन द रोटेटिंग ऑफ ए शाफ्ट. ओके, if the shaft because the shaft is uses for transmitting the torque. Okay, so that is connected with the help of shaft, this type. Okay, if you not added this bearing, then by the chances of friction occurs. Okay, this causes there are chances to failure or damage of this shaft. Okay, so that's why by removing the friction in a shaft, bearing is used. Okay, and also support the load. Is it clear? What is bearing? Generally all the type of machinery provided to support the rotating shaft. That means this is your shaft and in which having the bearing in this type. Okay, फिगर आगे नेक्स्ट में है, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा. Is it clear? Bearing is a machine element. Okay, that is used to provide the relative motion between the shaft and the other supporting member. Okay, ये क्या क्या करता है? bearing imply first supports and guide and restrain to the moving elements and also remove the friction. This is a main important. Okay, if you not used in a shaft bearing, okay, that's why this become, because of friction causes your shaft become damaged. Is it clear? Application of bearing: shaft in a workshop, spindle of a machine tool like a lathe machine, drilling machine and milling machine. So जितने भी आपका रोटेटिंग शाफ्ट रहते हैं वहाँ पे बीरिंग मोस्टली यूज होता है. ठीक है, जैसे इन केस आप कार हो गया, फिर आपका बाइक हो गया, वहाँ पे भी आपका बीरिंग यूज होता है. ठीक है, क्रैंक शाफ्ट, इंजन, एक्सल ऑफ ऑटोमोबाइल. ओके, सो इस टाइप से आपका बीरिंग यूज होता है. इज इट क्लियर? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन
of bearing, what are the, there are three types. Okay, first, direction of the load. Okay, if the load is applied, suppose this is your shaft, okay, in which having, this is your bearing, this is your bearing. एक मिनट देखो बीरिंग कैसे होता है, इस टाइप से, ठीक है, बीरिंग इस टाइप से होता है जिसमें छोटा छोटा बाल लगा हुआ रहता है। ओके, इसमें आपका शाफ्ट जो है कनेक्टेड होता है। इज इट क्लियर? यहाँ पे इसमें आपका शाफ्ट कनेक्टेड होगा, ठीक है, जिसके कारण ये आपका फ्रिक्शन और लोड को, पहले तो लोड को सपोर्ट करेगा एंड फ्रिक्शन को रिमूव करेगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बीरिंग में क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड, दिस में बी आइदर पैरेलल टू द शाफ्ट एंड परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट। ओके, so according to the direction of the load, there are three types, that is first general or radial bearing, foot step bearing and thrust or collar bearing. ओके, यहाँ पे याद रखना, जनरल और रेडियल बीरिंग अफोर्ड द सपोर्ट ऑफ द लोड शाफ्ट राइट एंगल टू द शाफ्ट। जनरल बीरिंग में क्या होगा, इसमें जो लोड है इस टाइप से रहेगा, ठीक है, दिस इज योर बीरिंग एंड हैविंग ए connected through the shaft. Okay, so in this type of bearing, that is general or radial bearing, so you remember that according to the name, radial bearing means the load is applied in this direction radially, okay, or perpendicular to the shaft. Is it clear? In the question you will ask in your exam, in the general bearing, what types of load acting on the bearing. Okay, तो यहाँ पे याद रखना है, if the load is acting on the radial side, that's why this is known as radial bearing और general bearing। ठीक है, इसी को आपका राइट एंगल में बोल सकते हैं, that means there is a 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका शाफ्ट हो गया, इसमें आपका 90 डिग्री द डायरेक्शन ऑफ द लोड इन द राइट एंगल ट्राइंगल और रेडियल डायरेक्शन और 90 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन में भी आ सकता है। इज इट क्लियर? देन आपका फुट स्टेप बेरिंग में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, इसमें आपका पैरेलल टू द शाफ्ट लोड लगेगा। ठीक है, दिस इज योर शाफ्ट इन विच कनेक्टेड टू द बीरिंग। ओके, सो इसमें जो आपका लोड है वो इस टाइप से लगेगा। एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जैसे आपका रेडियल बीरिंग। ठीक है, इसमें याद रखना, जो आपका फुट स्टेप बीरिंग है और पेवर्ड बीरिंग इन विच द सपोर्ट शाफ्ट इज पैरेलल टू द शाफ्ट एक्सिस। ठीक है, जो इसमें लोड लगेगा दैट इज पैरेलली लगेगा। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं आइदर पैरेलल टू द शाफ्ट, द लोड, द डायरेक्शन ऑफ द लोड इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द शाफ्ट। इज इट क्लियर? एक और होता है आपका थ्रस्ट और कॉलर बीरिंग। ठीक है, इसमें भी आपका एक्सियली लगता है। ठीक है, लेकिन आपको डिफरेंस याद रखना है, इसमें डिफरेंस सेम रहेगा, बाकी डिफरेंस आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आएगा। ठीक है, विच आर द टाइप्स ऑफ द बीरिंग अकॉर्डिंग टू द लोड वेरिएशन। Is it clear? These are the all the types of the bearing, that means ball bearing, bush bearing, thrust bearing, foot step bearing, rolling contact or anti-friction bearing, roller bearing, cylindrical roller bearing. Okay, so these are all the type of bearing which are used on the basis of application, and this is used on the basis of application. Okay, where to use and how to use and which type of load to carry. Okay, according to radial load, according to the axial load, according to the thrust load. Okay, so these are all the type of bearing. Is it clear? ठीक है, दिस इज योर बॉल बेरिंग। ठीक है, उतना डीपली में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली जो जो आपका बॉल बेरिंग मतलब बेरिंग से इंपॉर्टेंट है वहां पे अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज योर बॉल बेरिंग इन विच हैविंग द नंबर ऑफ बॉल्स, दिस इज योर बॉल। ओके, दैट्स व्हाई दिस हेल्प टू सपोर्ट द लोड। ओके, दैट्स नोन एज दिस इज ए बॉल बेरिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका दो एनुलर मेटल पीस रहता है, ये वाला, दिस वन अपर साइड एंड दिस वन बॉटम साइड। ओके, दिस इज नोन एज रेस। ठीक है, ये आपको फिक्स करते हैं, जिससे आपका जो बाल है वो ना ही आगे बढ़ता है ना ही पीछे होता है। ठीक है, वन प्लेस फिक्स्ड। ठीक है, दिस इज योर बुश बीरिंग, दिस इज ए स्मॉल सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बुश बीरिंग। ठीक है, तो आप बुश बीरिंग कैसे दिखता है, दिस टाइप सिंपल, इसका आप नाम से याद रखो, बुश बीरिंग इन योर एग्जाम में भी आस्क दिस इज विच टाइप ऑफ बीरिंग। ठीक है, तो याद रहना है व्हाट इज द बुश बीरिंग, यू सी दिस टाइप। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका थ्रस्ट बीरिंग। देखो आपका थ्रस्ट बीरिंग कैसे होता है, दिस टाइप, इन विच द लोड इज अप्लाइड ऑन द थ्रस्ट। थ्रस्ट मीन्स एक तरह से आपका फोर्स है
ठीक है, that will applied on the direction of the axially. Is it clear? This thrust bearing which is also known as the foot static bearing. ठीक है, ये आपको याद रखना है. Thrust bearing in the question you will ask the in your exam the name of the thrust bearing which is also known as foot static bearing. ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना the thrust bearing which is also known as the foot step bearing. Is it clear? Sir, how many marks we are expected aiming for SCCL exam? How many subject in this exam? Mostly आपका 20 to 30%. ओके, क्योंकि आपका जो वेटेज है वो अलग अलग है. एक तो आपका माइनिंग से ज़्यादा है और एप्टीट्यूड आएगा. ऐसा कुछ स्पेसिफिक इसमें नहीं बताया है कि आपका कितना पोर्शन आएगा. ठीक है, देयर इज ए नो स्पेसिफिक सिलेबस अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच सब्जेक्ट. ओके, सो मोस्टली 30%. दिस इज योर मैक्सिमम ना. 30% मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ओके, मीन्स आपका 30 क्वेश्चन, जैसे इफ यू 100 क्वेश्चन है, इसमें आपका 30 क्वेश्चन 25 to 30 क्वेश्चन आने का चांस है. ठीक है, इज इट क्लियर? सिंपली आपका वन लाइनर क्वेश्चन आएगा. ठीक है, ये वही है आपका फुट स्टेप बीरिंग, इसी को आपका ट्रस्ट बीरिंग भी बोलते हैं. दिस इज योर रोलिंग कॉन्टैक्ट बीरिंग. ओके, या फिर एंटी फ्रिक्शन बीरिंग. यू रिमेंबर दैट द नेम. सिंपल आपका वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से जो जो आएगा मैं उसी को बताऊंगा. ठीक है, उतना डीपली में जाने की जरूरत नहीं है. बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक अलग से आपका ब्रांच है. ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड टॉपिक है, उसी को मैं कवर कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो व्हाट इज द रोलिंग कॉन्टैक्ट बीरिंग? यू रिमेंबर दैट रोलिंग कॉन्टैक्ट बीरिंग विच इज ऑल्सो नोन एज द एंटी फ्रिक्शन बीरिंग. रोलिंग contact bearing. You see in this figure how to look like rolling contact bearing, in which having this type and outer race and the inner race, and this is known as cage. Okay, in which having the number of balls or rollers. Sometimes this is known as ball or sometimes it is known as roller. Okay, is it clear? So you remember that rolling contact bearing, that is also known as the anti friction bearing. Okay, this is your roller bearing, in which having the roller type na. In ball bearing there are having ball. Okay, but in case of a roller bearing there are having roller type. Okay, in this type you see here means cylindrical shape. In case of ball bearing there is a spherical shape. ठीक है, इसमें एक क्या रहता है, that is maintain accurate alignment रहता है between the each roller. Okay, ये आपका यूज होता है अलग अलग. जैसे आपको हैवी ड्यूटी, इफ यू वांट टू ट्रांसमिट द मोर पावर, लाइक इन केस ऑफ ए रेलवे वैगन हो गया. ठीक है, तो वहाँ पे इस टाइप से मोस्टली यूज होता है. ठीक है, दिस इज यूज अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन, अकॉर्डिंग टू द लोड अप्लाइड एंड व्हाट हाउ मच अमाउंट ऑफ पावर यू डिलीवर. ओके, दिस इज ऑल्सो सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग. ठीक है, इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है. सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग, इसमें आपका सिलिंड्रिकल शेप नहीं रहेगा, लेकिन इसमें आपका रोलर रहेगा छोटा छोटा. ठीक है, यू सी हियर not cylindrical shape, but in case of a cylindrical roller, the roller in the form of a cylindrical shape. Then next taper roller bearing, you see in this type taper roller bearing. ठीक है, ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. बेसिकली आप फिगर देखो किस टाइप से आपका शो होता है. मे बी क्वेश्चन यू विल आस्क इन योर एग्जाम, दिस इज विच टाइप ऑफ बीरिंग. ठीक है, तो मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो वहाँ पे अच्छे से आप देख लेना कि हाउ टू लुक लाइक द नीडल बॉल बीरिंग, नीडल रोलर बीरिंग. ओके, जैसे आपका दिस इज ए नीडल रोलर बीरिंग, वेयर यूज्ड, you see here needle roller bearing mostly used in a heavy automobile components such as रॉकर आर्म में यूज होता है, पंप में यूज होता है, कंप्रेसर में यूज होता है एंड ट्रांसमिशन पावर सिस्टम में यूज होता है. ठीक है, तो ये याद रखना नीडल रोलर बीरिंग दैट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द हैवी लोड और इफ यू वांट टू ट्रांसमिट द मोर पावर इन केस ऑफ रॉकर आर्म हो गया, पाइवट, रॉकर आर्म पाइवट हो गया, पंप हो गया. ठीक है, मोटर हो गया. ठीक है, तो इन दिस केसेस नीडल बार रोलर बीरिंग मोस्टली यूज्ड. ठीक है,
ये देखो आपका नेक्स्ट आपका रोलर रेडियल बीरिंग एंड द थ्रस्ट बीरिंग। रेडियल बीरिंग विच इज डिजाइंड स्पेशली टू सपोर्ट द रेडियल लोड। ठीक है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन आता है कि रेडियल बीरिंग विच इज डिजाइंड to support the either radial load or axial load or both load. Okay, so you remember that the radial load which is designed especially for radial load. ठीक है, because in which the load is applied on this bearing in radially direction. Okay, you see here this is figure 1 in which having the radial bearing. Okay, so this is your bearing and this is your shaft. Okay, shaft rotate in that direction and this is bearing. Okay, this portion is bearing and this is your frame. Okay, so load is applied in that direction, so this is a radially. Is it clear? Means आपका रेडियल है, ये आपका सर्कुलर शेप में रहता है, दिस इज योर सर्कुलर शेप ऑफ बीरिंग. Okay, in which the load is applied radially in this type. Is it clear? The load is applied in this type, so that's why this is known as the radially. So if you want to load is applied in parallel, suppose this is your shaft which is connected to the bearing. Okay, so if the load is applied in parallel to the shaft, okay, so that's known as thrust bearing. ठीक है, is it clear? Thrust bearing which is generally designed especially for the support the axial load. इसमें याद रखना what are the radial bearing and the thrust bearing. Okay, so thrust bearing is nothing but the bearing which is specially designed on the basis to support the axial load. Axial load means you see here this is your support or frame. Okay, this is your shaft. Okay, so this is a bearing in which having this is also frame. Okay, so load is applied on that direction. Okay, means parallel to the shaft, parallel to the shaft. Is it clear? So that's why this is known as the thrust bearing. ठीक है, is it clear? तो आपका प्लेन बीरिंग आ गया, दिस इज योर प्लेन बीरिंग. ओके, इन विच हैविंग नो एनी ball or roller. Okay, this is mostly used for rotational sliding or reciprocating or oscillating motion. ठीक है, you know the reciprocating motion means if you want to move from one position to another position in laterally or linear direction. Okay, this is known as the reciprocating motion. Rolling motion means if you want to move give do sorry move in a circular direction. Okay, so this is known as the rotational movement. ठीक है, so next आपका friction in the collar and pivots. ठीक है, you see in this figure this is a your shaft hole. Okay, in which having the bearing, this is your shaft. And how to see how the load is applied in this bearing. Okay, the load is applied in this type. Okay, if the load is applied just opposite on reaction forces applied in that side. Okay, so balance between this load and this reaction forces. Okay, याद रखना. ठीक है, for removing the friction sometimes it is lubricated. ऑयल हो गया या फिर ग्रीस हो गया, समटाइम यूज ऑयल और ग्रीस. इज क्लियर? ठीक है, तो फ्रिक्शन ऑफ ए पाइवट एंड कॉलर बीरिंग में किस टाइप से होगा ये देखो आपका, इसका भी आपका अलग अलग टाइप से है ना. फ्लैट पाइवट हो गया, कोनिकल पाइवट हो गया, ट्रंकेटेड पाइवट हो गया. यू सी हियर व्हाट इज द फ्लैट इन विच हैविंग द फ्लैट टाइप. यू सी हियर दिस इज योर फ्लैट टाइप in which the load is applied in this direction. Okay, and a conical pivot means the bottom side of the shaft is having in the conical shape, that's why this is known as the conical pivot. Okay, and the truncated pivot means there are the bottom side are having in this type like a trapezoidal shape like this. Okay, that's why this is known as the truncated pivot. Okay, this is a single plate. Okay, in which having the one collar. If you if in the bearing having the one collar, that is known as single plate collar. Okay, if you want if in the collar having, if in the bearing having the multiple collar, this one and this one and this one, that is known as the multiple plate collar bearing. ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? बीरिंग का पोर्शन उतना ज्यादा डीपली में जाने की जरूरत नहीं है. बेसिकली आप टाइप्स ऑफ बीरिंग देखो और बीरिंग क्या होता है. Okay, in the your question you will ask in your exam what are the bearing. Okay, how to use, what are the application of bearing, ये याद रखना है. ठीक है, तो what are the application of bearing? This is used to support the load. Okay, and guide the shaft. Okay, and also remove the friction. Is it clear? ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 पॉइंट याद रखना, व्हाट आर द एप्लीकेशन. ठीक है, मे भी जनरली इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बेरिंग. ठीक है, पर्पस क्या होता है इसका. तो सबसे पहले आपका मेन पर्पस क्या है, टू सपोर्ट द लोड. यहाँ पे फर्स्ट देखना, सपोर्ट द लोड.
ठीक है, इस टाइप से आपके ऑप्शन में रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, रिमूव द फ्रिक्शन। ठीक है, समटाइम्स देयर इज नो रिक्वायर्ड टू एड द लुब्रिकेंट, ओके, बिकॉज देयर आर हैविंग सम ball or collar, ball or roller, okay, this will help to remove the friction. Is it clear? You remember that what are the application? And 3, support the load, remove the friction, and guide the shaft. Okay, how to connect? This is your shaft having a circular section, okay, in which having this is your bearing. Okay, if the connected the bearing, there is no chances move this shaft either this side or this side, means this support the load, also guide the shaft, means there is a fix of this shaft, okay, जिसके कारण आपका जो shaft है वो bend नहीं होता है, that will help to power transmission, okay, यहाँ पे आपका जो है power जो है लॉस नहीं होगा। जैसे आपका बीरिंग खराब होता है तो समटाइम क्या होता है, वहाँ पे पावर लॉस होता है, ठीक है, उस टाइम आपका जो शाफ्ट है वो घिस जाता है इस टाइप से, ठीक है, तो देयर इज नीड टू चेंज दिस शाफ्ट इफ यू बीरिंग इज डैमेज्ड, ओके, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, तो आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गया थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन का। नेक्स्ट में अपन कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट, ये आपका सिंपल ये सब हो गया थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन का। इससे और टॉप 100 एमसीक्यू अपन रिवीजन करेंगे। टॉप कल कितना किए, कल आपका 25 क्वेश्चन किए ना, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है इन द लास्ट क्लास एमसीक्यू क्वेश्चन गवर्नर में, ठीक है, इससे एमसीक्यू अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? टिल नाउ एनीवन हैव डाउट? बीरिंग का अपन एमसीक्यू करेंगे तो वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन बीरिंग और जितने भी आपका थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन का एमसीक्यू क्वेश्चन है वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली इसमें उतना ज्यादा टॉपिक को डीपली में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, if you practice more and more question, then you are they are benefit for you, ठीक है वामिस। इसका प्रैक्टिस सेट उसमें रहेगा आपका टेस्ट सीरीज में, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेस क्लास। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.